Yes, good morning to all. Yes, sir. Good morning. Yes, up to the last lecture, we had discussed the benzene and its derivative. And in that, we had studied uh, what are the aromatic compound and what are the properties of aromatic compound and how they identified by following the aromaticity rules, and what are the chemical property associated with aromatic compound, that is uh, though they containing the degree of unsaturation but undergo the substitution reaction, especially the electrophilic substitution reaction in presence of the appropriate catalyst, है ना? But still, if the aromatic system that containing the electron withdrawing group, like the electronegative atom, in that case it also undergo the nucleophilic substitution reaction, है ना? In drastic condition, like at a higher temperature, pressure, or the more nucleophilicity reagent, the nucleophile that having the higher nucleophilicity. Again, we had also discussed some compound structure and its property, है ना? और कुछ MCQ भी देखा था. Now in this lecture we are going to discuss the new topic, that is the cycloalkane, है ना? Yes. हेलो. यस सर. हाँ, साइक्लोअल्केन है ना. तो जैसा इसके पहले हमने फर्स्ट ईयर में देखा था द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना. वी मे क्लासिफाइड द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एन नंबर ऑफ टाइप, है ना, बेस्ड ऑन द सोर्स, बेस्ड ऑन अ नेचर, बेस्ड ऑन अ कैटेगरी, और बेस्ड ऑन अ स्ट्रक्चर. तो उसमें से ही एक टाइप है दैट इज बेस्ड ऑन अ स्ट्रक्चर. द organic compound mainly classified into the aliphatic and cyclic compound, है ना. Aliphatic means having the straight chain compound, may be containing the saturated or unsaturated. और second part है इसका cyclic organic compound, है ना. Cyclic organic compound is further divided into the carbocyclic and heterocyclic, or may be classified into the aromatic or non-aromatic compound, है ना. जैसे cyclic compound is further divided into the aromatic and non-aromatic. In the same way, heterocyclic compound also classified into the aromatic and non-aromatic. But broadly, the cyclic organic compound classified into the carbocyclic and heterocyclic compound. Carbocyclic means the cyclic compound that containing just only the carbon atom. And heterocyclic organic compound means the carbocyclic compound in which one of the carbon atom replaced or substituted by the heteroatom, maybe the nitrogen, maybe the oxygen, maybe the सल्फर, है ना. ये जब कार्बन को रिप्लेस बाय दिस हेटेरोएटम दैट कॉल्ड एज द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, है ना. तो दिस कार्बोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, है ना. ये दो टाइप है साइक्लिक कंपाउंड के. साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने टाइप है? Heterocyclic and carbocyclic. Carbocyclic. This heterocyclic and carbocyclic further divided into the aromatic and non-aromatic. Just give me the example. चले गया स्क्रीन. आपको स्क्रीन दिख रहा है? No, No, sir. ये क्रश हो रहा है no, बार. sir. हाँ, तो मुझे ना कार्बोसाइक्लिक में ना, जो कार्बोसाइक्लिक में एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कोई बोलेगा एरोमेटिक कंपाउंड का? नहीं होगा. यस. हेलो.
सर रिपीट कीजिए। Just tell me the example of aromatic carbocyclic compound. The carbocyclic compound is aromatic. बेंजीन। Yes, exactly. और अभी जो तुम्हारा भी अभी टॉपिक भी चालू है, यासर सर ले रहे हैं आई थिंक। That is a naphthalene, anthracene, phenanthrene, है ना? All these are the example of the carbocyclic aromatic hydrocarbons, है ना? Because all the these compound containing just only the carbons, है ना? आया समझ में? Yes, sir. और अभी जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये जो बैकग्राउंड के जो कंपाउंड है, ये क्या है? ये सिंपल द साइक्लिक कंपाउंड है ना, नॉन एरोमेटिक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन से, लाइक द प्रोपे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है। बस इसमें क्या रहता है, जस्ट एडिंग द वर्ड ऑफ साइक्लो बिफोर द आईयूपैक नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग कंपाउंड that correspond to the number of carbon atom, like the 3 carbon atom, then the propane, तो इसके जस्ट बिफोर सफिक्स क्या लगाना है हमको? साइक्लोप्रोपेन, that is the 4 carbon atom ring form में तो cyclobutane, similarly the cyclopropane, cyclohexane, cycloheptane, cyclooctane, cyclononane, cyclodecane, unidecane और dodecane. All these are the example of the non aromatic carbocyclic compound, है ना? तो ये हमें ना स्टडी करने जा रहे हैं, है ना? तो बिफोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक, आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑलरेडी फैमिलियर विद द ज्योमेट्री ऑफ अल्केन्स. अल्केन्स क्या रहता है? दिस इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. इन दैट all the carbon atom in which type of hybridization? sp3. sp3. Like the example of methane, like the example of ethane, propane, butane, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, कोई भी एग्जांपल जब हम लेंगे तो इन दैट ऑल द कार्बन एटम इन विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? sp3. sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना? और हमको पता ही है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन एटम इन विच टाइप ऑफ, हम हैविंग द ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल. ज्योमेट्री कैसी रहती है उसकी? टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल रहती है. और उसके बाद में बॉन्ड एंगल कितना रहता है? 109 डिग्री. कोई बुक में 35 इंचेस दिया है, कोई बुक में 5 इंचेस दिया है, कोई बुक में 28 इंच दिया है. तो इसको ना वॉट एवर द रेफरेंस बुक गिवन, जस्ट वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स दिया है, तो वो हम इसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना? तो ये क्या है? नॉर्मल बॉन्ड एंगल है. मींस मिथेन में भी कभी हमें ना उसको दो कार्बन के बीच में का बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? दैट इज नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, दैट इज 109 डिग्री 28 मीन्स. इन सेम वे इथेन में भी 2 कार्बन एटम के बीच में, प्रोपेन में भी सिमिलरली बिटवीन 2 कार्बन एटम. इन सेम वे द ब्यूटेन, प्रोपेन, दैट इज हेक्सेन, हेप्टेन में सभी में है ना यहाँ पर बॉन्ड एंगल, कोई भी बॉन्ड एंगल जब हम डिटरमाइन करेंगे तो इट शुड बी द नॉट मोर देन और नॉट लेस देन 109 डिग्री 28 मीन्स. दिस इज द नॉर्मल बॉन्ड एंगल. क्या है ये? नॉर्मल बॉन्ड एंगल है ना? अभी क्या रहता है, जब हमें ना कोई भी चीज हमें ना नॉर्मल से डेविएट करते हैं, क्या करेंगे हम? उसको नॉर्मल से डेविएट करेंगे तो व्हाट हैपन? दैट कॉजेज द डिफॉर्मेशन. उसमें क्या होता है? उसका डिफॉर्मेशन चेंज होता है. मींस उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर रहता है, नॉर्मल फिजिकल स्ट्रक्चर, वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब होता है. दैट कॉजेज द डिफॉर्मेशन. क्या हो जाएगा उसमें? deformation होगा. And that deformation giving rise to the strain means that is nothing, means something is not normal, that is means something is not deviated from the natural, that is called as the strain, है ना? तो ये समझ में आ गया आपको नेचुरल बॉन्ड एंगल क्या है, या नेचुरल बॉन्ड एंगल इन अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज 109 डिग्री 28 means anything is that is deviated from the natural, that causes the deformation, that causes the strain, means that is deviated from the natural value, that causes the strain, है ना? तो if we see the syllabus of this cycloalkane का कभी हमें ना syllabus देखेंगे तो क्या है यहाँ पर? That the stability regarding with particularly with the Baer strain theory, then limitation of the Baer strain theory,
देन कॉल्सन मॉफिट्स मॉडिफिकेशन, सैचेस मोहर्स थ्योरी, और उसके बाद में हमको देखना है रिएक्शन पर्टिकुलर टू दैट साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, है ना। तो इसका वन बाय वन टॉपिक हम देखेंगे। नियर द फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज अ बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, है ना, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो देखो जो वर्ड हमने इसके पहले डिस्कस किया, स्ट्रेन, स्ट्रेन, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, the name of scientist is Adolf Hitler, that is I think he proposed this theory in 1850, है ना। तो what is the name of this theory? Bear strain theory, है ना। इसमें दूसरा वर्ड कौन सा आ रहा है? bear is the come from the scientist name, और strain आ रहा है। strain means क्या रहता है? मैंने इसके पहले ही आपको बोला क्या रहता है strain means? Deformation. Deformation means deviation from the natural value, है ना। तो this theory is related to that of the anything or something that is deviated or that is going away from the natural value. This theory is particularly related with the strain, है ना। तो वही देखने जा रहे हैं, है ना। जैसा देखो हमने बोला है हमको the normal angle between a pair of a bond of a carbon, है ना। normal angle between a pair of a bond of a carbon atom is 109 degree 28 inches in a tetrahedral geometry, है ना। जैसा देख लो यहाँ पर मीथेन में क्या है देखो, देखो मीथेन में भी है ना ये the central carbon atom to which the 4 hydrogen atom attach in a tetrahedral geometry and each bond angle क्या है यहाँ पे, that is 109 degree 28 minutes, यहाँ पे ना 5 inches बताया, एक्चुअली वो वेरी किया है थोड़ा बहुत अलग अलग बुक में, है ना। इन अ सेम वे इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द इथेन में भी क्या है देखो, बॉन्ड एंगल बिटवीन टू कार्बन एटम और CH ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम एंड CC बॉन्ड ऑफ, तो क्या है यहाँ पर भी 109.28 मिनट्स है। और यहाँ पर भी देखो ये दो CH के बीच में का भी बॉन्ड क्या है 109 degree 28 मींस द आइडियल बॉन्ड एंगल इज मेंटेन इन ऑल द अल्केन्स, सभी अल्केन्स में, क्योंकि सभी अल्केन्स कौन से इसमें है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, दैट्स व्हाई द नेचुरल बॉन्ड एंगल इज 109 degree 28 मिनट्स, है ना, टू मेंटेन द नॉर्मल ज्योमेट्री, है ना। So Baer proposed that, what he proposed that anything is deviated from the natural value, especially the bond angle from the normal tetrahedral value. So that causes the internal strain. On the ring, है ना। तो दिस थ्योरी इज पर्टिकुलरली रिलेटेड विद अ साइक्लिक कंपाउंड, है ना। तो यहाँ पर हम साइक्लिक की बात करेंगे तो व्हाट ही प्रपोज दैट एनीथिंग दैट डेविएट फ्रॉम द नेचुरल वैल्यू स्पेशली इन बॉन्ड एंगल क्या है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 degree 28 means so anything is that deviate from this natural bond value that causes the internal strain, है ना, in a ring, है ना। तो this is the bond angle strain, that's why this is called as the bond angle strain, है ना। आपको समझ में आया क्या प्रपोज, व्हाट ही प्रपोज्ड? हेलो सर बॉन्ड एंगल नेचुरल से थोड़ा कम हुआ है 109। नहीं, he proposed that anything that is deviated from the natural value that causes the internal strain, but in this what he again narrowly says that anything that change or they deviate from the natural bond angle, that is 109 degree 28 means anything that deviate from the natural bond angle, that is 109 degree 28 means that cause the internal strain of the ring। वो क्या होता है उसकी वजह से, डिफॉर्मेशन ऑफ द रिंग होता है। उसकी वजह से क्या होता है, that if the ring system that deviate from the natural bond angle that cause the deformation of the ring, or this deformation of the ring more specifically called as the bond angle strain, what we call the angle strain or called as the bond angle strain, and that determine the stability of a ring
और दैट में डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ द रिंग, है ना? समझ में आ रहा है आपको? कोई चीज उसके नेचुरल वैल्यू से डेविएट होंगी तो उसमें क्या हो जाएगा? इंटरनल स्ट्रेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा उसमें? इंटरनल स्ट्रेन आ जाएगा उसमें, है ना? और जब इंटरनल स्ट्रेन आ जाएगा पर्टिकुलर टू द डेविएशन ऑफ द एंगल, तो दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एज द बॉन्ड एंगल स्ट्रेन और आल्सो कॉल्ड एज द जस्ट ओनली द एंगल स्ट्रेन। उसमें क्या हो जाएगा? एंगल स्ट्रेन आ रहा है, और एंगल स्ट्रेन इज नथिंग बट द डेविएशन फ्रॉम द नेचुरल बॉन्ड एंगल। और कोई चीज उसके नेचुरल बॉन्ड एंगल से डेविएट होती है तो इनडायरेक्टली इट स्टोर द सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है आपको? हेलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो अभी पर्टिकुलरली हमारे है ना क्लास की स्ट्रेंथ है ना मोर देन है ना 74 या 80 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है पर्टिकुलरली अभी तक, है ना? लिया है ना एडमिशन, पर उसमें से 34 ही स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पर अभी हमारे ऑनलाइन लेक्चर में। तो मीन्स ये क्या है? दे आर विलिंगली ज्वाइन द लेक्चर्स, है ना? तो यहाँ पे कोई सॉर्ट ऑफ स्ट्रेन नहीं है यहाँ पर। बट कभी है ना जो बाकी के अदर देन 34 हम इनने सबको ही कंपल्शन किया कि सबकी अटेंडेंस जरूरी है, यहाँ पर नहीं आए तो आपको फाइन लगेगा, या वी आर नॉट अलाउड इन अ सेशनल एग्जामिनेशन और वी आर टेकिंग द स्ट्रिक्ट एक्शन। तो वो उसकी वजह से क्या हो जाएगा मालूम है क्या? जो उनकी नेचुरल टेंडेंसी हम उसको क्या कर रहे हैं? थोड़ा है ना प्रेशर ला रहे हैं। उनकी जो नेचुरल टेंडेंसी वो जो बाकी के अदर देन 34 स्टूडेंट, तो उनको क्या कर रहे हैं? हम थोड़ा बर्डन ला रहे हैं। तो उसकी वजह से वो लोग क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। अब वो ज्वाइन करेंगे ना तो दैट इज नॉट अ नेचुरल टेंडेंसी। वो उनकी नेचुरल टेंडेंसी के लेक्चर में ज्वाइन करने की नहीं, तो भी हम उसको क्या कर रहे हैं? डिफॉर्म कर रहे हैं उसको। क्या कर रहे हैं? उनके नेचुरल टेंडेंसी से थोड़ा सा हमको है ना उसको क्या कर रहे हैं? थोड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से दो दे ज्वाइन द क्लास, बट वो क्या करेंगे? दे आर मेकिंग सम हर्डल्स। वो क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे या फिर बस ज्वाइन होके बाजू बैठ जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? डिफॉर्म हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? अनस्टेबिलिटी आ रही है अपने लेक्चर में। समझ में आ रहा है आपको? या और कॉमन एग्जांपल इज दैट जैसा आपके ना क्लास में बैठते तो आपका जो बेंच रहता है दैट नेचुरली अकोमोडेट ओनली द नॉट मोर देन हाउ मेनी स्टूडेंट? 2. 2 स्टूडेंट, है ना? डेफिनेटली अब ये 2 स्टूडेंट ही इस पे बैठे तो बहुत अच्छे से बैठेंगे, एक स्टूडेंट बैठा तो भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि वो बाकी की जगह खाली हो जाएंगी। या 3 स्टूडेंट जब बैठ गए उस पे तो फिर वो स्पेशली ये रहेगा कि स्पेस रहेगा क्या उसमें, या नेचुरली बैठेंगे क्या? वो No. नहीं बैठ सकेंगे। वो एक दूसरे को क्या करेंगे? पुश करेंगे। तो वो क्या हो जा रहा है? डिफॉर्मेशन हो जा रहा है। मींस क्या हो जा रहा है? चेंजेस आ रहा है। दैट इज नॉट स्टिक अप टू द नेचुरल टेंडेंसी, है ना? तो उसकी वजह से क्या होगा? एक दूसरे को वो क्या करेंगे? लोटेंगे। मींस दैट दे आर नॉट अ स्टेबल। तो इन अ सेम वे इफ अ स्ट्रक्चर, इफ अ केमिकल स्ट्रक्चर और इन अ ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, if it is deviated from the natural values, so that cause the internal strain, that cause the internal stress. In case of the cyclic compound, if it is deviated from the angle, from the natural bond angle, that is 109 degree 28 minutes, so that cause the internal strain in a angle, so that called as the bond angle strain. Once the structure that experience the bond angle strain, that cause the stability problem, that cause the stability problem, वो stable रहेगा क्या? No, sir. नहीं रहेगा वो स्टेबल। दैट कंटिन्यूअसली ट्राई टू ओवरकम फ्रॉम दिस ट्रेन, दैट कंटिन्यूअसली ट्राई टू ओवरकम फ्रॉम दिस ट्रेन, दैट्स व्हाई दिस वन इज मोर रिएक्टिव। समझ में आ गया आपको? Yes, sir. है ना? मींस एनीथिंग दैट इज स्टेबल तो वो रिएक्टिव कम रहता है, दैट इज अ लेस रिएक्टिव। एनीथिंग दैट इज मोर रिएक्टिव, दैट इज अ लेस रिएक्टिव। एनीथिंग दैट इज लेस स्टेबल तो वो क्या रहेगा? मोर रिएक्टिव रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Just take the example of alkane and alkenes. Alkanes में क्या रहता है? Saturated रहता है, stable रहता है, that's why the less reactive रहता है, that is a non-polar. But in case of the alkenes or alkynes that containing the unsaturated carbon-carbon double bond or triple bond, so in that case the other than the sigma bond, that is a 1 pi bond in case of the alkenes and 2 pi bond in a alkynes. So this is a loosely held between 2 carbon atom. So that's prone to the undergoing the addition reaction, है ना? That eligible or that easily undergo the
एडिशन रिएक्शन, है ना। तो वो क्या आता है अनस्टेबल होने की वजह से। तो वही हमें ना ये प्रिंसिपल आपको, और ये द लेमैन रूल शुड बी नोट दैट एनीथिंग दैट इज अ मोर स्टेबल that is a less reactive, anything that is a less stable that is a more reactive, है ना। तो यहाँ पर यही बात हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, that deviate from the natural bond angle cause the bond angle strain, that deviate, है ना, the ring system that deviate from the natural bond angle that cause the bond angle strain. strain का मीनिंग समझ में आ गया आपको क्या है? तो Yes, sir. स्क्रीन चले गई डबल से। स्ट्रेन का मीनिंग कोई बोलेगा मुझे? स्ट्रेन का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्ट्रेन? ये स्ट्रेन का मीनिंग कोई बोलेगा? स्ट्रेन, yes, listen carefully. Sir, All the sir, topic, what is the name of this bit? साइक्लोअल्केन, है ना। क्या नाम है ये चैप्टर का? साइक्लोअल्केन। तो होल चैप्टर इज जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड द स्ट्रेन। ये एक ही वर्ड के ना अराउंड में रिवॉल्व हो रहा है ये पूरा का पूरा चैप्टर। तो आपको ना स्ट्रेन जब मीनिंग समझ में आ जाएगा ना, तो ये टॉपिक बहुत इजीली बोलो, तो इसको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो जस्ट टेल मी द व्हाट यू गॉट द स्ट्रेन। आपको स्ट्रेन से क्या मालूम है? हाँ बोलो। Yes, what is strain? pressurized करने. Sir, Yes, हाँ। compression or expansion of bond angle. Yes, again any precisely कोई और अच्छे से बोला है आपने, और कोई accurately बोलेगा? Compression and expansion of bond angle due to deformation. Sir, Yes. force required to normal to another structure. Yes, exactly. इसको ही क्या बोलेंगे हम? Anything that is deviated from the natural value, है ना। एक सिंपल और लेमैन लैंग्वेज में कभी हम स्ट्रेन की बात करेंगे, anything that is deviated from the natural value that cause the strain, उसको क्या हो जाता है? वो चीज में क्या हो जाता है? वो पर्टिकुलरली थिंग्स में क्या हो जाता है? स्ट्रेन डेवलप होती है ना। एनीथिंग दैट इज डेविएटेड फ्रॉम द नेचुरल वैल्यू दैट डेवलप द स्ट्रेन। but in case of the cyclic compound, if the cyclic compound that is deviated from the natural bond angle in bracket 109 degree 28 means the cyclic chain that is deviated from the natural bond angle that cause the development of the internal strain in the ring, or this internal strain in the ring is called as the एंगल स्ट्रेन। इसको ही क्या बोलेंगे? एंगल स्ट्रेन। क्योंकि ये स्ट्रेन क्यों डेवलप हो रहा है? ड्यू टू द डेविएशन ऑफ द एंगल, दैट्स व्हाई दिस स्ट्रेन इज कॉल्ड एज द एंगल स्ट्रेन, है ना। अभी कभी है ना बाय द चांस है ना दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट आ रहे हैं नजदीक, जैसे एक मिथिल ग्रुप है और टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप है, ये क्या है? दोनों भी बल्की ग्रुप है। तो ये इसके वजह से जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्टेरिक स्ट्रेन बोलेंगे। समझ में आ गया आपको? ड्यू टू द बल्कीनेस, समझ में आ रहा है आपको? यस सर स्ट्रेन एक बार एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, तो स्ट्रेन है, देखो अब है ना, आप डबल से बोल रहा हूं मैं, अच्छे से सुन लो आप। क्या? एनीथिंग दैट इज डेविएटेड फ्रॉम द नेचुरल वैल्यू, एनीथिंग दैट इज डेविएटेड फ्रॉम द नेचुरल वैल्यू कॉल्ड द स्ट्रेन। उसमें क्या हो जाता है? स्ट्रेन डेवलप होती है, डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन इन अ नेचुरल वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेन, है ना। तो जब है ना, ये समझ में आ गया स्ट्रेन कब डेवलप होती है? तो डिफॉर्मेशन,
और डिफॉर्मेशन कब होता है? दैट इज डेविएशन फ्रॉम द नेचुरल वैल्यू, है ना? Yes, sir. तो जब हमें ना पर्टिकुलरली ना स्ट्रेन की बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड में और रिंग स्ट्रक्चर में, तो एनीथिंग दैट इज डेविएटेड फ्रॉम द नेचुरल बॉन्ड, इफ द स्ट्रक्चर दैट डेविएट, if the structure that deviate from the natural bond angle, so that cause the development of internal strain, that cause the development of an internal strain, and this internal strain develop in a ring. That's why this the cause is due to the deviation of a bond angle. That's why this strain is called as the bond angle strain, or also called as the angle strain. इसको तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन बोलेंगे या एंगल स्ट्रेन बोलेंगे. अब दिस ये बॉन्ड एंगल स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन दैट इज ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ अ नेचुरल बॉन्ड एंगल. तो ये नेचुरल बॉन्ड एंगल से क्या हो रही है? डिफॉर्म हो रही है, डेविएट हो रही है. तो ये डेविएट होनी उसकी वजह से क्या हो रही है? अनस्टेबिलिटी डेवलप हो रही है कंपाउंड में. कंपाउंड स्टेबल रहेगा क्या वो सिचुएशन में? नहीं रहेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, जो इसकी नेचुरल वैल्यूज है उससे क्या हो रही है? वो डेविएट हो रही है, दैट इज डिफॉर्म हो रही है. दैट्स व्हाई कॉज द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, है ना? तो दिस बॉन्ड एंगल स्ट्रेन आल्सो गिविंग द स्टेबिलिटी पैटर्न. और स्टेबिलिटी कभी ना डेविएट हो रही है कोई कंपाउंड की, तो दैट कॉज द रिएक्टिविटी प्रॉब्लम, है ना? कभी ज्यादा अनस्टेबल रहेगा तो मोर रिएक्टिव रहेगा. So this theory that proposed by the Baer, that's why this theory is called as the Baer strain theory. That's why this theory is called as the Baer strain theory. तो ये समझ में आ गया theory क्या है? तो Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो there are some assumptions or that proposed by the Baer strain theory, also called as the angle strain theory. तो इसमें उसने सब में पहले क्या प्रपोज किया है? द ऑप्टिमम ओवरलैप. To co-host. Yes, I am audible. Yes, Hello. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी समझ में आ गई. व्हाट ही प्रपोज? anything that is deviated from the natural bond angle that cause the bond angle strain, है ना? तो there are the some assumption or the he proposed that the optimum overlapping of the atomic orbitals, है ना? सिग्मा बॉन्ड हो गया या पाई बॉन्ड हो गया, तो ये जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो इसमें क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल.
है ना. When there is a SS overlapping, that is a sigma covalent bond, है ना. PP overlapping रहता है तो क्या फॉर्म होता है, pi bond फॉर्म होता है. तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली द overlapping of an atomic orbital, है ना. And maximum overlapping or optimum overlapping of an atomic orbital is achieved when everything is natural, that is maintain the natural decorum, है ना. फॉर एग्जाम्पल इन बॉन्ड एंगल जब है ना 109.28 मिनट्स रहेंगे, जब भी जाके क्या रहेगा, मैक्सिमम ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज पॉसिबल. एंड इन दैट, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इन अ आइडियल बॉन्ड एंगल. क्या रहेगा जब, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इन अ आइडियल बॉन्ड एंगल, है ना. अब कभी है ना बॉन्ड एंगल कभी डेविएट हो रहा है, कभी बाय द चांस बॉन्ड एंगल डेविएट हो रहा है, तो व्हाट हैपन, the bond is not the maximum overlapping is not possible and the bond is somewhat the less stable, है ना. So that's why the effective and optimum overlapping, for the effective and optimum overlap, the atomic orbital produce the maximum bond strain and more stable. If the maximum overlapping or effective overlapping whenever possible, when the bond angle is 109 degree 28 minutes, तो उस टाइम में ना मैक्सिमम बॉन्ड ओवरलैपिंग होंगी, तो दैट्स व्हाई द बॉन्ड, व्हाटएवर द रिजल्टिंग बॉन्ड इज मोर strengthened and more stable. If the bond angle deviate from the ideal, then ring produce the strain. What happen when a bond angle is deviated from the natural, that is 109 degree 28 minutes से कभी deviate होता है, तो that the ring produce the strain. What happen, the ring produce the strain. Higher the strain, higher the instability. कभी strain ज्यादा रहती है तो क्या होगा, resulting is the more instability. Higher the strain produce the increases the reactivity. कभी है ना instability ज्यादा रहेंगी तो reactivity भी क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी. और reactivity कभी ज्यादा रहेंगी और instability कभी है ना ज्यादा रहेंगी तो क्या रहेंगे, heat of combustion भी क्या रहेगा, वो compound का ज्यादा रहेगा. Increases the heat of combustion because this is the parameter that used for the determining the stability. More the heat of combustion, less is the stable and more is the reactivity. तो ये assumption समझ में आ गया इसके, ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी के एक मर्तबा समझ में आ गया क्या, एक मर्तबा डबल से बोल समझाने का ये चीज है. यस, ये बात समझ में आई आपके. ऐसा हाँ, तो ये देखो ये स्लाइड पे हमको बस दो तीन चीजें ही समझने की है. एक तो फर्स्ट चीज ये, फर्स्ट थिंग इज दैट द मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज पॉसिबल व्हेन देयर इज अ बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स. व्हेन अ बॉन्ड एंगल मेंटेन 109 डिग्री 28 मिनट्स, in that case only the maximum overlapping is possible. When maximum overlapping is possible, तो क्या होगा, the more stronger bond is resulting is a more stronger bond and resulting is a more stable compound when it maintain the natural bond angle. But what happen when the bond angle is deviated, when a bond angle is deviated from the 109 degree 28 minutes, so that causes the internal strain, that causes the bond angle strain, that causes the partial overlapping. The resulting is the weakening the resulting covalent bond. That resulting is the instability of the molecule. That resulting is the more reactivity of the molecule. That resulting is the increasing the heat of combustion. और heat of combustion क्यों बढ़ता है, due to the instability problem. तो ये चीजें समझ में आ गई आपको ये स्लाइड पर. Yes, sir. Yes. Now the next is according to the Beer strain theory, all the ring systems are planar. What he proposed that? He proposed that all the ring systems are planar. The deviation from the normal tetrahedral angle result in a unstable
cycloalkane है ना. What he proposed, the ring system is planar. Second thing is that deviation from the natural bond angle that cause the unstable the cycloalkane. Again he proposed that the large ring system mark the large ring system involve the negative strain, hence it not exist है ना. What he proposed that, जैसे देखो अभी देखो यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको स्लाइड नजर आ रही है, क्या नजर आ रहा है बोलो मुझे कोई. Shapes. साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन है ना. तो देखो साइक्लो जो प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन जस्ट लुक लाइक द ट्रायंगल, और ट्रायंगल में ना बॉन्ड एंगल कितना रहता है 60. तो देखो यहाँ पे ना कितना डेविएट हो रहा है ये नेचुरल बॉन्ड एंगल से. जैसे सपोज यहाँ पे ये कर लो कि बॉन्ड नेचुरल बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 5 मिनट्स है इसका, तो इट डेविएट फ्रॉम द 60 है ना. तो 60 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है इसका रिजल्टिंग इज द डेविएशन 49 डिग्री 5 इंचेस आ रहा है इसका. 49. समझ में आ रहा है ना, 49.5 आ रहा है. साइक्लोब्यूटेन कितना डेविएट हो रहा है 19.5. 19.5. साइक्लोपेंटेन कितना डेविएट हो रहा है 1.5. हाँ. तो अभी देखो हम कंपेयर करेंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन में, तो सब में ज्यादा कौन सा डेविएट हो रहा है साइक्लोप्रोपेन. फिर उसके बाद में साइक्लोब्यूटेन. और उसके बाद में फिर साइक्लोप्रोपेन है ना. तो सब में ज्यादा बॉन्ड एंगल स्ट्रेन किधर नजर आ रही है हमको, विच स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस द मोर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन. Cyclopropane. Definitely cyclopropane experience the more bond angle strain compared to that of the cyclobutane and compared to that of the cyclopropane. So from this we can easily explain the stability pattern. Which one is the more stable? Cyclopentane. Yes, cyclopentane is a more stable क्योंकि उसमें ना bond angle strain सब में कम है. That's why this one is a more stable compared to that of the cyclobutane, compared to that of the cyclopropane. तो ये समझ में आ गया आपको? Which one is the more stable? The cyclopropane is more stable compared to that of the cyclobutane and compared to that of the Propane. cyclopropane. है ना? Cyclopropane is more stable compared to that of the cyclobutane and cyclobutane is more stable compared to that of the cyclopropane. This is a stability pattern. But जब हम ना reactivity pattern की बात करेंगे तो सब में ज्यादा reactive कौन रहेगा? Cyclopropane. Cyclopropane. Cyclopropane is more reactive than cyclobutane. Cyclobutane is more reactive than cyclopentane. है ना? This is due to the स्टेबिलिटी है ना. जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उतना लेस रिएक्टिव रहेगा है ना. जितना ज्यादा लेस स्टेबल अनस्टेबल रहेगा उतना ज्यादा वो क्या रहेगा रिएक्टिव रहेगा है ना. दैट्स व्हाई इन अ रिंग ओपनिंग चेन द साइक्लोप्रोपेन इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द साइक्लोब्यूटेन है ना. तो वही बोला है यहाँ पे. अभी और फिर हम कभी बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन की. साइक्लोहेक्सेन का क्या है, साइक्लोहेक्सेन कैसा रहता है, ये दिस इज द regular cyclohexane type hexagon. जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में बॉन्ड एंगल कितना है 120. 120. तो ये कितना डेविएट हो रहा है बॉन्ड एंगल से बोलो. 120 माइनस 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 120. तो ये कितना डेविएट हो रहा है -5.16. माइनस नहीं ज्यादा हो रहा है ना 5.16 ना.
10.5 हो रहा है ये। कैसे? एक मिनट। 109.5 में से आप है ना 120 माइनस कर लो ना, -10. है ना, -10.5 है ना। तो वही यहाँ पे बोला है अभी डबल से स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, एक मिनट। आपको स्क्रीन अपीयर हो रही है? आपके जो भी आप स्क्रीन आ रही है आपको नजर? No, sir. PPT? एक मिनट। तो what he proposed, second thing is proposed the large ring system involve the negative strain। समझ में आ रहा है आपको? देखो हेक्सेन में क्या है, हेक्सेन में बॉन्ड एंगल 120 है, तो जब 120 हम माइनस करते हैं जो नेचुरल बॉन्ड एंगल से, तो दैट गिविंग द नेगेटिव 10.5। तो what he proposed the larger ring system involve the negative strains, hence do not exist, है ना। वो क्या बोलता है? it not exist means the bond angle in a cyclohexane and higher cycloalkane like the heptane, cyclooctane, cyclonone, all are the bond angle not larger than 109 because the carbon ring of those compound are not planar but it is the puckered shape। दो द ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट दिया था उसने, है ना। उसने क्या बोला था कि जो साइक्लोहेक्सेन के ऊपर के जो साइक्लोअल्केन है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडेकेन, all these compound in which the bond angle is not larger than 109 degree 28 minutes, है ना, because this cyclic ring or this cycloalkane compound are not planar but it is the puckered shape, है ना, but it is the puckered shape। हाँ देखो, जो आपको जो स्लाइड नजर आ रही है अभी, Yes, sir. हाँ, तो उसमें के सब में जो लास्ट पॉइंट है ना, लास्ट 2 पॉइंट जस्ट रीड वंस। द लार्ज रिंग सिस्टम इन्वॉल्व द नेगेटिव स्ट्रेन्स हेंस डू नॉट एग्जिस्ट। बोलो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्या है ना, नेगेटिव स्ट्रेन आने को होना, है ना। समझ में आ रहा है आपको? दैट्स व्हाई ही प्रपोज दैट द हायर साइक्लोअल्केन नॉट हैविंग द प्लेनार शेप बट हैविंग द पकर्ड शेप, है ना। कभी प्लेनार रहा तो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव में वैल्यू आएंगी उसकी स्ट्रेन की, एंड इट इज नॉट पॉसिबल। सर तो फिर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? अभी देखो आपके स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है तो है ना, अकॉर्डिंग टू द बेयर स्ट्रेन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द बेयर स्ट्रेन थ्योरी व्हिच वन इज द मोर स्टेबल? Cyclopentane. Cyclopentane is more stable than cyclobutane, cyclobutane is more stable than cyclopropane। तो this is according to the Bayer strain theory। और Bayer strain theory ने क्या बोला था? all the cyclic chain compound is the planar having the natural bond angle is 109 degree 28 minutes। if anything that deviate from the natural that cause the internal strain
और internal, if the more the internal strain, that is the more the bond angle strain, less the stability. तो इसीलिए देखो bond angle strain कितना है इसमें 49 है, that's why it's less stable. But compared to that of the cyclobutane में just only the 19.5, that's why this one is a more stable compared to that of the cyclopropane. Again, if we compare the stability among the cyclobutane and cyclopropane, तो क्या हो रहा है, cyclopropane में क्या है, bond angle strain just only the 1.5, and in case of the cyclobutane it having just having the 19.5. That's why the cyclopentane is a more stable compared to that of the cyclobutane. Again, if we compare the so he proposed that cyclopentane is a more stable than that of the other cyclic chain, है ना, क्योंकि क्या बोल रहा है वो, according to him only in a cyclopropane the deviation is less, only the deviation is less compared to that of the other cycloalkanes. That's why the cyclopropane is the most stable compared to that of the another cycloalkane, है ना. But this is the wrong. That's why आपके सिलेबस में लिमिटेशन बोला है वहां पे, नॉट अ ड्रॉबैक भी बोला है और लिमिटेशन बोला है. देखो ड्रॉबैक बोलो तो क्या है, फॉल्स प्रपोज किया है, और लिमिटेशन मींस ही इज लिमिटेड, मींस ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द समथिंग एक्स्ट्रा, that is a limited. तो इसीलिए क्या बोला है वहां पे, लिमिटेशन बोला है. तो he proposed that the cyclopropane is the more stable than that of the smaller cycloalkane and the higher cycloalkane because it experience the less angle strain, है ना. वही देखेंगे हम आगे. The bare strain theory helpful to understand the instability of cycloalkane ring system, है ना. What he assumption, it helpful to understand the instability of the cycloalkane ring system, है ना. वही statement actually हो गया. Cyclopropane is a triangle and all the three angles are 60 degree in place of 109 degree 5 minute, है ना. The cyclobutane is a square and all the angle is 90 degree in place of the 109.5, है ना. तो deviation of the cyclopropane and cyclobutane ring system then normal tetrahedral angle will produce the strain. ये statement समझ में आ गई होगी आपके. ये जो ब्राउन कलर में स्टेटमेंट नजर आ रही है आपके स्क्रीन में, ये स्टेटमेंट समझ में आई आपके? यस सर. है ना. So means the ring deviate from the natural bond angle, natural tetrahedral bond angle. That's why rings experience the bond angle strain and make the compound unstable. That make the compound unstable, है ना. जैसा देखो जब स्ट्रेट चेन कंपाउंड रहते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन में देखो क्या है, यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल मेंटेन किया है सभी का. इवन यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन इसको इधर अटैच है, इसको इधर अटैच है, यहाँ पर भी इसको 3 जो अटैच है, तो ये सभी में बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 109.5 रहेगा, है ना. 109.5 रहेगा. बट व्हेन अ साइक्लोप्रोपेन अंडरगो द साइक्लाइजेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ अ करस्पॉन्डिंग cyclopropane, so in that case this bond angle decreases from 109 to 60 degree Celsius. So that deviate by the how many 49.5 degree, है ना. 49.5 degree ये deviate हो रहा है, और deviation की वजह से क्या होता है, that experience the internal strain, and this internal strain is called as the bond angle strain, or anything that experience the bond angle strain that is less stable, है ना. वो कंटिन्यूअसली ट्राई क्या करता है, टू कम अप द नेचुरल, है ना. देखो जब उसको क्या कर रहे हो, प्रेशराइज करके उसका बॉन्ड एंगल क्या कर रहे हैं, कम हो जा रहा है. तो वो कम होने की वजह से क्या हो रहा है, दैट एक्सपीरियंस द स्ट्रेन एंड इट कंटिन्यूअसली ट्राई टू ओवरकम फ्रॉम दिस स्ट्रेन, है ना. क्यों, इसको प्रेशराइज कर रहे हैं तो उसकी वजह से उसका बॉन्ड एंगल तो कम तो हो गया है, बट इट कंटिन्यूअसली ट्राई टू ओवरकम फ्रॉम दिस स्ट्रेन, है ना. और when it continuously try to overcome from this strain, that cause the reactivity, that increases the reactivity, उसकी वजह से उसकी क्या हो जा रही है, reactivity क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है. That's why the cyclopropane is more reactive than cyclobutane and less stable than cyclobutane, है ना. Now the stability comparison of the cyclopropane and cyclobutane.
तो we know that the natural tetrahedral bond angle is 109 degree 28 और 5 inches दिया है यहाँ पर, है ना, डिग्री दिया है यहाँ पर, है ना। तो बॉन्ड एंगल इन साइक्लोप्रोपेन 60 है, तो डेविएशन कितना आ रहा है उसका 49 आ रहा है, और डेविएशन ऑफ साइक्लोब्यूटेन का कितना आ रहा है, जस्ट ओनली द 19 डिग्री आ रहा है। तो that's why the deviation of a cyclopropane is 49 and deviation of a cyclobutane is 19. That's why higher the deviation in a cyclopropane than cyclobutane. Therefore, the cyclopropane is more prone to undergo the ring opening reaction compared to that of the cyclobutane. And it will make the cyclopropane less stable than cyclobutane. That's why the cyclopropane easily undergo the ring opening reaction compared to that of the cyclobutane. And the reactivity order of the stability of some common cycloalkane is just appear on your screen. That is the cyclopentane is more reactive. देखो यहाँ पे reactive order बोला है, यहाँ पे नोट कर लो, reactive order बोला है यहाँ पे, reactive order. Cyclopentane is more reactive than cyclobutane than cyclopropane. नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ द बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ये हमें ना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पर ये समझ में आ गया बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या है, तो ऑल्सो कॉल्ड एज द बॉन्ड एंगल स्ट्रेन थ्योरी और एंगल स्ट्रेन थ्योरी। समझ में आ गया सभी के? यस सर। मैं अभी है ना इमीडिएटली हमारा लेक्चर खत्म होने के बाद में मैं 2 पीडीएफ आपको शेयर करता हूँ, ये अच्छे से ना थरोली, दोनों भी एक ही है, तो वो अच्छे से पढ़ लो, और कुछ डिफिकल्टी रहेंगी तो हमें ना कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। ओके सर। सर स्ट्रेन को एक बार फिर से डिफाइन कीजिए ना। यस, कौन सा? स्ट्रेन को एक बार फिर से डिफाइन कीजिए। ये देखो आप है ना, जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होगा ना तो इमीडिएटली स्ट्रेन का है ना मीनिंग है ना, डिक्शनरी मीनिंग देखो, तो डिक्शनरी मीनिंग सेज दैट, डिक्शनरी अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी मीनिंग क्या है, डिक्शनरी मीनिंग स्ट्रेन का ये है कि डिफॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मींस क्या होता है, डिफॉर्म होती कोई बॉडी है ना, उसके नेचुरल जो उसका ये है शेप है, उससे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वो ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेन, है ना। मींस डिफॉर्मेशन फ्रॉम द नेचुरल वैल्यूज और डिफॉर्मेशन फ्रॉम द नेचुरल शेप, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेन। मींस क्या हो रही है, एनीथिंग or any compound or any molecule that cause the change from the natural value, so that experience the some sort of strain, that experience the some sort of strain, है ना। तो जैसा भी ना कभी एंगल में चेंज हो गया उसके नेचुरल से, जैसा नेचुरल बॉन्ड एंगल कितना है अल्केन्स में 109 डिग्री 28 मिनट्स या 5 मिनट्स है ना। तो ये कभी ना चेंज होगा तो उसका समझो ये तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से वो दैट स्ट्रक्चर और दैट मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस द स्ट्रेन, एंड दिस change is due to the bond angle, that's why this is called as the bond angle strain और angle strain। समझ में आएगा, स्ट्रेन समझ में आई फिर अभी आपको ये बात? यस सर। है ना। जैसे देख लो, मैं आपको है ना एक नेचुरल एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे देखो हम क्लास में बैठते हैं ना, तो वो जैसा एक चेयर पे एक ही बैठ सकता है ना, तो ये क्या करेंगे, दैट वो उसका नेचुरल पोजीशन मेंटेन करेगा, है ना। कोई चेयर पे एक ही बैठा तो दैट मेंटेन द नेचुरल शेप, बट कभी हमने वो चेयर पे 2 लोगों को बिठा दिए तो क्या हो जाएगा, जो नेचुरल शेप रहता है बॉडी का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेन आ गया, इसमें क्या हो गया, स्ट्रेन आ गया, क्या हो गया, डिफॉर्मेशन ऑफ द नेचुरल शेप, तो दैट इज अ डेवलप द स्ट्रेन, है ना। तो यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, जब भी उसका बॉन्ड एंगल डेविएट होगा तो दैट कॉजेज द स्ट्रेन, और ये स्ट्रेन क्यों आ रहा है, इसको रीजन बिहाइंड द चेंज द बॉन्ड एंगल, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, है ना। ओके सर। हाँ चलिए, तो कल के अभी मैं ना आपको ना इमीडिएटली व्हाट्सएप पे ना 2 पीडीएफ शेयर करता हूँ, वो आप अच्छे से थरोली पढ़ लो, और कल कुछ डिफिकल्टी रहती तो मुझे पूछो फिर, है ना। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।